Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 26th of June 2024. First of all, we're talking about a new index which will be ranking the states on the basis of welfare of workers. So labor welfare and employment index which will be ranking the states and the UTs on different parameters जिसके अंदर employment, labor, welfare, social security coverage and productivity will be measured. So healthy competition कैसे states के बीच में हम और enhance कर पाए, इसके साथ साथ ease of doing business जिसमें laborers की right कितना productivity वो maintain कर पा रहे हैं, कितना बेसिक चीजें उनके लिए अवेलेबल हैं, एंड देन ऑल्सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दिए जाते हैं उनको कितना हम फॉलो अप कर पा रहे हैं. तो लेबर राइट्स इंडेक्स कंपैरेटिव टूल जो कि इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को बेसिकली मेजर करता है एंड अलाउ And we can see, this showcases the element of competitive federalism and the benefits out of it. We can see कि there is a win-win situation on both the sides. कि states में भी जो condition है वो भी improve हो सकती है because of the competition and it will be benefiting the workers also. And in a way जैसे हम last 2 दिन से बात कर रहे हैं what steps are needed to really organize this unorganized sector labor market specifically, because India may we say कि 93% of laborers they are in unorganized sector. And internationally we can say कि when we are talking about the blue collar jobs, so the laborers who are migrating out to like Middle East countries, specifically when we are talking about Saudi Arabia and Kuwait में अभी हमने देखा fire incidents हुआ था जिसकी वजह से a lot of workers they have died. So this can also prevent their out migration or emigration out of India. यस एंड इसके साथ साथ एमएसएमई के बारे में हमने बात की थी एंड ऑल्सो अबाउट गिग वर्कर्स. तो Right. हम फॉर्मलाइज सेक्टर के अंदर जिसमें सोशल सिक्योरिटी इतनी ज्यादा प्रोवाइडेड नहीं होती, वेजेस में अनसिक्योरिटी होती है, बेसिक एमिनिटीज ऑन साइट पे अवेलेबल नहीं होती है. हाँ, we can say कि in a way things will get codified properly जब हम implementation of labor codes की बात करते हैं, तो that is why it is important. तो वही formalization होता है. Then next, calling on lifting sugar export curbs based on crop yields. तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इस काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें आईएमडी के जो स्टैट्स हैं रिगार्डिंग दी नॉर्मल मॉनसून उसको डिस्कस किया गया. तो शुगर कितना प्रोड्यूस हो पाएगा उसको लेके एस्टिमेट दिया गया है बाय द इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन. एंड उन्होंने बोला है कि करंट सीजन में जो शुगर का प्रोडक्शन है इट कैन बी अराउंड 32 मिलियन टन्स. सो शुगर कंजम्पशन जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए तो जरूरी है ही, बट जो रीजनेबल क्वांटिटी है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसके लिए भी अवेलेबल हो. तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं शुगर एक्सपोर्ट पे फ्रॉम 2022 उसको अलाउ किया जाए, उसकी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि अलाउ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए. इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर है एंड सिग्निफिकेंट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है जिसमें 12% एथेनॉल ब्लेंडिंग हमने अचीव कर ली है, बट नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 20% ब्लेंडिंग अचीव करना है. तो उसके लिए भी And target year is I think 2025 for this जो 20% of ethanol blending achieve करने का. So यहाँ पे question यही उठता है कि they are talking about क्या ये rational basis है crop yields के basis पे when you're talking about lifting the sugar export curbs. So एक ये बात आती है. And secondly, when we are talking about global level production, तो largest producer of sugarcane is Brazil and largest producer sugar का India है. So this is one important fact we can say. And when we're talking about sugarcane production, so we know that it is highly water intensive crop. And secondly, जो MSP होती है for sugarcane, it is called the state administered prices of fair and remunerative price जो center decide करता है. SAP is decided by the state and वो भी indirectly दी जाती है to the farmers. तो sugar mills को जो amount है गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है एंड देन फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसफर टू द फार्मर्स.
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक्सपोर्ट कर्ब्स है, इसमें भी दो एलिमेंट या फिर ट्रेड ऑफ्स की हमने पहले भी बात करी है। चाहे हम वीट एक्सपोर्ट बैन की बात करते हैं, राइस एक्सपोर्ट बैन की बात करते हैं, तो उसमें भी सेम एलिमेंट है कि वेदर दिस इज प्रो कंज्यूमर्स और इट इज प्रो फार्मर्स। अगर आप एक्सपोर्ट बैन कर रहे हो तो इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग मेजर्स, इट इज मोर वी कैन से इंक्लाइंड और स्क्यू टुवर्ड्स प्रो कंज्यूमर्स, मतलब उनके बेनिफिट के लिए कि प्राइसेस जो फूड इन्फ्लेशन है हम उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए हमने एक्सपोर्ट कर्ब्स लगा दिए हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट बेनिफिटिंग और इट इज ऑल्सो कर्बिंग आर एक्सपोर्ट्स। जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया के टोटल जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं दे आर फॉलिंग, सो वन solution which is provided by the economist is that instead of curbing the exports you can think of कि आप उसी कमोडिटी का जिसका डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम हो रहा है या इट इज इनएडिक्वेट अकॉर्डिंग टू द टोटल डिमांड इन द मार्केट, आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दैट वुड बी कंसिडर्ड मच मोर बेटर एंड सेफर एंड दोनों साइड को बेनिफिट करेगा, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। एंड ऑल्सो वो जो डायलेमा है कि हम बैलेंस कैसे करें, जो सॉइल यूज किया जा रहा है फॉर दी डोमेस्टिक पर्पसेस कंजम्पशन के लिए, और दूसरी साइड आ जाता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, एथेनॉल के लिए जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर केन। हाँ राइटली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि स्पेसिफिकली कि आप उसको उधर डाइवर्ट करने के लिए बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आप शुगर केन प्लांटेशन को इंक्रीज कर रहे हो। तो इसमें भी हमने दो सोर्सेस की बात करी थी। जैसे हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, तो जब थर्ड एंड फोर्थ का प्रोपोर्शनेट शेयर इंक्रीज होगा जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गे यूज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, देन वी कैन से कि आई थिंक हमने एक कीवर्ड डिस्कस किया था इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल कि ये एक्चुअली हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें यही था कि जब ये प्रो शुगर केन वाला जो एलिमेंट है ये कम होगा और जो नॉन एडिबल एलिमेंट्स है या नॉन एडिबल फूड से हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो फूड वेस्टेज वाला जो एलिमेंट है उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल, वो तब हमें एक्चुअली हेल्प कर सकता है। तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये रेनोवेबल, एक्चुअली रेनोवेबल है इन नेचर। हाँ, हमने और एथेनॉल इसको इको हाँ, फ्रेंडलीनेस की बात की थी कि हम्म, उसका भी वाटर फुटप्रिंट ज्यादा होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है उसके लिए। एंड शुगर हाँ केन जब वाटर हम इंटेंसिव उगाते हैं है। तो रोज इसके राइट। लिए रोज इसको इरिगेशन चाहिए होती है, तो वाटर इंटेंसिव बहुत ज्यादा होता है। और इसको शुगर कंजम्पशन को हम देन अगेन हेल्थ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रोसेस फूड की बात करते हैं या जो हम कीवर्ड यूज करते हैं कि हाई सॉल्ट, हाई शुगर एंड हाई, आई थिंक वन मोर थिंग इज देयर, हाई फैट, ये तीन एलिमेंट्स है। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन हम कैसे कम कर सकते हैं, तो वो भी एक एलिमेंट है क्योंकि इंडिया इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर ऑल्सो। तो शुगर इन नेचुरल फॉर्म्स का कंजम्पशन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ processed food items। और natural sugar में we talk about the natural sugar which is present in fruits, then we can promote the consumption of jaggery या powdered sugar which is considered to be relatively safer in consumption। एंड इंडिया के अंदर बात करते हैं टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र आता है, देन कम्स उत्तर प्रदेश एंड देन कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इट इज लिस्टिंग टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें बात हो रही है इलास्टो कैलोरिक्स की, दैट इज अ सस्टेनेबल कूलिंग सोल्यूशन एंड लाइवस्टॉक फीड सोर्सेज फ्रॉम द सिंगल सेल प्रोटीन्स। यहाँ पे हम बस वी कैन जस्ट रिमेम्बर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू स्पेसिफिकली यहाँ पे कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो मेंशन्ड है, तो बस इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वी रिमेम्बर दी टर्म्स। AI powered scientific discovery, carbon capturing microbes। ठीक है। Next, India is moving towards sustainable 8% GDP growth. तो इंट्रोडक्शन किया जीएसटी का, जिसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कोड लेके आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉडल जो है बेसिकली उसको और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हम बना पाए। मानसी दी, इसमें आप ऐड कर दीजिए। इसमें एक आर्गुमेंट ये होता है कि इंडिया का पहले तो
एक एग्जैक्ट फिगर डिटरमाइन करना कि व्हाट इज दी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जीडीपी ग्रोथ है, जो पोटेंशियल जीडीपी है, मतलब वो मैक्सिमम लेवल है जो जीडीपी का अचीव किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लेवल इन द इकोनॉमी। और उस लेवल को अचीव करने के बाद if we are seeing कि there is for example expansionary monetary policy, क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी में और ग्रोथ होनी चाहिए, बट वंस यू आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी एंड देन वी आर सीइंग इफ देयर इज expansionary fiscal policy or there is expansionary monetary policy, it will definitely lead to increase in prices and hence inflation. So एक this is one thing, and यहाँ पे बात ये हो रही है वही कि जो सस्टेनेबल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अभी के लिए इट इज कंसिडर्ड टू बी दी पोटेंशियल जीडीपी ऑफ इंडिया, जो हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है। सर्विसेज सेक्टर में हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज करके, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, गिवन द लार्जर एंड इम्पोर्टेंट शेयर ऑफ एमएसएमईज। सो ये सारी चीजें हैं। एंड बाकी यहाँ एग्जाम्पल जैसे दे रखा है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने क्या किए, तो जीएसटी इज वन ऑफ देम, इवन डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ देम, देन आईबीसी इज वन ऑफ देम, इवन जो 4 लेबर कोड है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस। गिग इकोनॉमी के लिए और हमें क्या करना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। एंड पेंडिंग रिफॉर्म्स ऑफ जीएसटी, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो ब्रॉडर हमारी इकोनॉमी के फंक्शन को रीस्ट्रक्चर करते हैं, बेटर इंप्रूव करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो उनको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं। और इससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चरल जीडीपी भी, ओ सॉरी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी होता है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो वो अगेन उसके पीछे यही सेम रीजंस हैं कि स्ट्रक्चरल कुछ ऐसे लूप होल्स हैं या फिर जो हमें डिसएडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे रिफॉर्म्स होना इंपॉर्टेंट है। उस रीजन की वजह से वी सी अनएम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स। Okay. The next we are talking about how we will be improving the exports, research and development, and also ease of doing business. So specifically in the service sector यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे competitiveness को हम domestic level पे बढ़ा सकते हैं. Then how can we avoid the dumping of Chinese products, जिसकी वजह से क्वालिटी पे कम ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इसके अलावा इंडिया इंडिया का जो शिपिंग लाइन है, जिससे हम ग्लोबल रूट्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे, उनको कैसे डेवलप हम कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और भी ज्यादा हेल्प करेगा इन दी सर्विस सेक्टर. तो तो इसमें कल भी हमने और इन्फॉर्मेशन कवर किया था कि हमारा करंट अकाउंट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 इज इन सरप्लस, एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज अगेन नेट सर्विसेज रिसिप्ट्स दैट हैज इंक्रीज्ड. So services sector plays an important role, and overall broadly this is talking about how we can increase the exports. So for that, one element is how much are we allocating, how much percentage of GDP are we allocating for research and development so as to boost R&D. Then in this context, we have also discussed one more important element, that is the SEZ reforms, देश बिल, जिसकी हमने बात करी थी, डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि लोकल मार्केट के साथ वो कितना इंटीग्रेटेड है, और जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं क्या वो लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल एंड डिजायरेबल है कि नहीं है। एंड ऑल्सो चाइना के साथ भी हमने बात की थी, जो ट्रेड टाइज से, जिसमें चाइना जो है इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द इंडियाज ग्लोबल ट्रेड, जिसमें राइट, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, प्लास्टिक गुड्स वो एंड डोमिनेट, प्रोडक्ट्स. मोर देन हाफ उसी का कंपोनेंट है जो इंडिया का ट्रेड है विद चाइना, एंड 15% ऑफ आर imports आर कमिंग फ्रॉम चाइना ओवरऑल, एंड ऑल्सो वी हैव क्रॉस्ड $100 billion mark of imports with China. So China becomes the largest trading partner of India, followed by USA. So in this case, we are promoting self-reliance via Atmanirbharta, via Make in India, via the PLI and DLI schemes. And then rate rationalization of GST is one important element. Then digitization, UPI, RuPay cards, these are playing important role. All of these things are interrelated to each other. जी. तो इसी की लाइंस में जो नया पोर्ट हम इनाग्रेट भी कर रहे हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्टल साइड, जो कि स्ट्रेंथन करेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
ट्रेडिंग कॉरिडोर को भी एंड आईएमएक को भी। उसका नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, वल्धर आई थिंक। इट इज इन मुंबई ना, रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया था। Next we're talking about GNSS based electronic system and how it will be replacing the current FASTag system. तो GNSS, that is Global Navigation Satellite System. So ये basically इसके अंदर एक constellation of satellites इंक्लूडेड होती हैं जो कि ऑल ओवर द अर्थ सिग्नल्स ट्रांसमिट करती हैं एंड देन पोजिशनिंग एंड जो टाइम का डेटा है वो रिसीवर्स के पास आता है। तो जीएनएसएस के अंदर पूरी ग्लोबल कवरेज मिलती है जिसमें यूरोप का जो गैलीलियो है, यूएसए का जो नैवस्टार जीपीएस यूज करता है यूएसए, इसके अलावा रशिया का जो ग्लोनास है वो भी, एंड इंडिया का जो नेविक है वो भी। तो ये सब इंक्लूडेड होते हैं जीएनएसएस के अंदर। 4 क्राइटेरियाज में ये हमें हेल्प करेगा एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, इंटेग्रिटी को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है पूरे ओवरऑल डेटा की उसको और भी ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए। तो जर्मनी पहली कंट्री थी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जीएनएसएस बेस्ड ट्रक टोलिंग 2005 के अंदर। तो फास्टैग जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया था कि जो ओवरऑल टोल कलेक्शन वाला प्रोसेस है उसको हम फास्ट कर पाए एंड लंबी लेन्स को हम अवॉइड कर पाए, ट्रैफिक को अवॉइड कर पाए, डिलेज ना हो। बट अभी भी देखा जाता है कि डिले होता है, तो और फास्टर प्रोसेस के लिए हम देख रहे हैं कि नाविक का हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिट जो माना जा रहा है कि होगा आउट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन वुड बी द रिडक्शन इन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। और इंडिया का मैक्सिमम जो लॉजिस्टिक्स है दैट हैपेंस थ्रू रोड बेस। So right now we have reduced our logistics cost from 12% to around 8%, and global level pe the global average is close to 4%. So this is one of the benefits. So in a way it will be increasing the ease of transportation. Second element would be, as it is mentioned also, कि it will ensure at least 99% of the toll collection. So hence it will help in increasing the government's revenue, or we can say government's receipts. So this can play an important role even in reducing, or we can say, the fiscal consolidation or reducing the fiscal deficit. Now, concerns related to this can be the surveillance, because your location can be traced. Secondly, would be your the right to privacy, how that would be ensured, how your data would be secured. That is another concern. And since it would be again based on the global navigation satellite system, so since it is global, can we really shift it to the IRNSS जो इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है या नहीं? क्या उस पे हम शिफ्ट कर सकते हैं? बिकॉज पहले मेन कंसर्न ये था कि वी वर डिपेंडेंट अपॉन जीपीएस लार्जली, सो then we came up with our own indigenous system. So these are three elements as far as concerns are related. जैसे पहले हम जीपीएस यूज कर रहे थे बट इसके अंदर हम गगन जो हमारा जीपीएस सिस्टम है नेशनल लेवल पे उसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे why it is mentioned कि it is GNSS based electronic system? It क्योंकि is to global navigation satellite. जीएनएसएस के अंदर ही आता है हमारा जो नाविक का सिस्टम है, वो भी जो हमारा खुद का सैटेलाइट सिस्टम है उसको हम ओवरऑल हम्म ग्लोबल लेवल पे हम जीएनएसएस बोलते हैं, जिसमें हर कॉन्टिनेंट का जो मेजर ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है वो इंक्लूडेड है। उसमें 4 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं एंड 3 पोलर सैटेलाइट्स हैं। एंड एंड अभी प्लस जो 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी तक उसकी रेंज है। 1500 किलोमीटर्स। हाँ राइट, 1500 किलोमीटर। इस पे क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में, तो आई थिंक यस। वहां पे 5000 किलोमीटर्स कुछ मेंशन था, बट इट इज 1500 किलोमीटर्स। एंड जो फास्टैग अभी डिवाइस हम यूज करते हैं उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज होता है। तो आर फिट टैग जो उसके ऊपर लगा होता है कार के ऊपर। Then next is exporters and how they are seeking the government push for shipping lanes. तो शिपिंग लेन्स की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, दैट कुड टच $200 billion mark as exports. तो शिपिंग कॉस्ट बेसिकली लॉजिस्टिक की यहाँ पे बात हो रही है।
कि कैसे कॉम्पिटिटिवनेस को हम इंक्रीज करेंगे विद द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम करेंगे, जिसके लिए PLI स्कीम भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की जाती है, जिसमें 10% ऑफ जो ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट के ऊपर स्पेसिफिक सेक्टर्स में, उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक्सपोर्ट जो है वो कम हुए हैं बाय 13%, तो वहां पे री इंट्रोडक्शन हुआ है इस इम्पोर्ट ड्यूटी का। प्रेशियस मेटल्स पे 4% से अभी 15% हो गया है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस को ये हैम्पर करता है, साथ साथ में जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है उसको कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि इन स्पेसिफिक सेक्टर्स को हम बढ़ा पाए आगे। यस, इनको और encourage कर सके। सो इसमें we when we talk about the government initiatives, तो we see port led development। मतलब कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, वी आर डेवलपिंग मेजर पोर्ट्स अक्रॉस बोथ द कोस्ट ऑफ इंडिया, and Sagar initiative is a part of it, then connecting this with the dedicated freight corridors that can also help। And एक important element जो है, how we can increase our exports और important shipping lanes of communication को हम कैसे competitive या international in nature बना सकते हैं। For that, how we can reduce the टर्न अराउंड टाइम। सो इसमें भी हमने कंपेयर किया था इंटरनेशनली फ्यू कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज, वेयर द टर्न अराउंड टाइम इज, इट इज लाइक इन few hours। in case of India it is right now in the like in the form of number of days, कुछ दिन हमें लगते हैं in terms of the turnaround time। तो ये important factor है। and then sustainable fuel की हम बात कर सकते हैं, and इलेक्ट्रिक्स एंड इंजीनियरिंग स्किल्स को कैसे यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द शिप्स इन इंडिया। तो इन दैट केस, इन स्पेसिफिकली कॉनकोर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंटेनर टर्मिनल ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी। सो कंटेनर्स के लिए हम क्या इसमें भी अगेन इंपोर्ट डिपेंडेंट है या फिर फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट है, या इसमें हम कंप्लीटली इंडिजनाइजेशन, सेल्फ रिलायबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज विद टाइम द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हाउ दैट कैन बी इंक्रीज, तो कॉनकोर का रोल बिकम्स सिग्निफिकेंट। एंड जो मुंबई में हमने रिसेंटली बात की थी, महाराष्ट्र के अंदर वधवन पोर्ट था वो, वधवन वर्धमान पोर्ट, ठीक। जिसके आसपास हम डेडिकेटेड फ्रेट लार्जेस्ट कॉरिडोर भी बनाएंगे और स्मार्ट पोर्ट सिटीज भी साथ में इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, so we can say कि smart ports would be an important element of even the smart cities mission also, जो coastal areas में located है। और coastal regulation zones के जो norms हैं वो भी important हो जाते हैं, their implementation is significant। and इसमें disaster safety के perspective से एक important element रहेगा। and again we are seeing that the incidence of piracy is also increasing specifically in the Arabian Sea, तो वो भी एक important element है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग सिक्योरिटी कॉन्क्लेव विद श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस इज रिसेंटली एंटर्ड, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ensuring the safety and security of important sea lanes of communication। Yes. The next is regarding hydropower generation, and जो अभी हम देख रहे हैं एल नीनो की वजह से पैची रेनफॉल हो रहा है या फिर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हो रहे हैं कुछ कुछ एरियाज में, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स के अंदर वाटर लेवल कितना है, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो 25% लाइव स्टोरेज अवेलेबल है अभी इंडिया के की रिजर्वॉयर्स के अंदर, एंड हमने देखा था स्पेसिफिकली इन दी साउदर्न इंडिया, जहाँ पे कुछ कुछ रिजर्वॉयर्स का लेवल जो है वो 17% ऑफ देयर कैपेसिटी तक जा चुका है। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसमें एल नीनो आ जाता है, पैची रेनफॉल हो रही है, प्रोलॉन्ग समर है, प्रोलॉन्ग हीट वेव्स है, जिसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बताया जा रहा है कि पावर जनरेशन जो है वो लास्ट ईयर में भी डिक्लाइन हुआ था बाय 17%, जबकि जो डिमांड है फॉर एनर्जी, डिमांड है फॉर पावर इन दी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो इंक्रीज हुई है। तो वो डिमांड पीक की है। तो यहाँ पे हम बात करें कि हाइड्रो पावर जनरेशन अगर इम्पैक्ट हो रहा है, तो रीस अभी करंटली जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं वो बेसिकली लोड लेने वाले हैं, जो भी गैप क्रिएट किया जाएगा बाय द हाइड्रो पावर जनरेशन। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर बात करते हैं अगर इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी के बारे में, तो 46.92 गीगावाट्स इंस्टॉल्ड है अभी।
विच इज अबाउट 10% ऑफ द जो भी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, दैट इज 442.85 गीगावाट्स। इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर्स के एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इंदिरा सागर रिजर्वॉयर एमपी के अंदर, जो कि अभी 17% अपनी हाइडल कैपेसिटी के ऊपर वर्क कर रहा है। कोयना डैम महाराष्ट्र के अंदर, जो कि 10% अभी अपनी कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो वाटर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है हाइड्रो पावर जनरेशन को। एंड इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर ज्यादा वाटर यूसेज होता है, जैसे कि कोल पावर प्लांट है, स्टील मेकर्स हैं, ये भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाले हैं जो कम हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है। तो वाटर स्ट्रेस की वजह से ये इंडस्ट्रीज तो इम्पैक्ट होंगी ही, इनके साथ हाइड्रो पावर जनरेशन इम्पैक्ट होगा। एंड साथ में जो वाटर क्राइसिस देख रहे हैं हम मेजर सिटीज के अंदर, जैसे बेंगलुरु वाटर क्राइसिस हमने देखा, दिल्ली वाटर क्राइसिस देखा, एंड रिसेंटली हमने महाराष्ट्र के अंदर भी वाटर क्राइसिस देखा है। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो इसमें what are the solutions? One, we can say कि run of the river projects can be one of the solutions, and then lift irrigation dams banana. Specifically, Telangana में one is one of the largest one is functioning. So this can be there, and इसमें लार्ज हाइड्रो पावर जो इंडिया में इंस्टॉल्ड पावर है दैट इज 47 गीगावाट्स। तो उसका थर्ड लार्जेस्ट शेयर है इन द टोटल एनर्जी शेयर इन केस ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज द कोल व्हिच इज क्लोज टू 217 गीगावाट्स। सेकंड वी हैव द सोलर व्हिच इज 81 गीगावाट्स। थर्ड इज द लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स। सो जैसे हम बात ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी पे हमने कल इन डिटेल बात कर चुके हैं, तो ये उसका एक एलिमेंट है हाइड्रो पावर से रिलेटेड चैलेंजेस। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी रेनफॉल इंडिया रिसीव करता है, तो 75% रेनफॉल 4 महीने में ही रिसीव करता है, दैट इज जून से सितंबर के बीच में। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करना। राइट। और डैम सेफ्टी बिल, सेफ्टी ऑफ डैम्स वो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ एजिंग डैम्स। लार्ज स्पेसिफिकली लार्ज डैम्स जो है वो इंडिया में अभी करंट एक चैलेंज है। Yes. Next, we're talking about lithium batteries, how it is becoming an advanced technology for the emerging technologies, जिसमें हम lithium batteries को यूज कर रहे हैं EVs के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, PCs के अंदर। बट इसके साथ साथ यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं फायर के इंसिडेंट्स को लेके। तो फायर सेफ्टी को लेके यहाँ पे कंसर्न्स उठ रहे हैं। हम अगर बात करते हैं कि पीसीज और ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स के अंदर जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। बट यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी लिथियम बैटरीज की, जो कि रिचार्जेबल नहीं होती हैं, जिनको हम स्मार्ट ग्रिड के अंदर यूज करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस होती हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर। तो ये जो प्राइमरी लिथियम बैटरीज हैं जो कि रिचार्जेबल नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फायर इग्निशन के केसेस इंक्रीज हो गए हैं, जिसमें 5000 डिग्रीज या जो नॉर्मल हाउस फायर होती है उसके उससे 5 टाइम ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम यहाँ पे लिथियम बैटरीज के अंदर फायर इग्निशन के केसेस देख रहे हैं। तो ऐसा साउथ कोरिया में भी हमने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे 35,000 बैटरी सेल्स जो हैं वो स्टोर्ड थे, एंड उस साइट पे बेसिकली फायर का इंसिडेंट अकर हुआ। तो रेस करता है कि सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं लिथियम बैटरीज को लेके डिफिकल्ट कर देता है कि कैसे हम इस फायर को मैनेज कर पाएंगे। सो लिथियम की जब हम बात करते हैं कि लिथियम इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल, सो लिथियम आयन बैटरीज में वी क्वेश्चन और वी हैव द कंसर्न्स रिलेटेड टू इट्स एफिशिएंसी एंड वर्किंग अबव 45 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन से कि इवन हाउ क्लाइमेट चेंज इट पोजेस challenges and concerns related to renewable energy also, and few initiatives in the context of availability imports of lithium by India includes that the Kabil जो है they signed a deal or there was a deal with Argentina, that is one in lithium triangle की हम बात करते हैं जिसमें we have Bolivia, Chile and Argentina, they are the 3 countries in lithium triangle. So इसमें भी we are talking about how firstly global south का एक important role है, then certain element of hegemony exists when we're talking about the supply or refining of the lithium by China.
एंड ऐसे फायर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए ऑन साइट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कूलेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ वाटर। बट वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए फाइनेंशियली वायबल नहीं होता हर फायर स्टेशन के लिए कि वो बड़े वॉल्यूम्स में लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर कर पाए। तो ये भी एक कंसर्न होता है। देन नेक्स्ट, रियलाइजिंग द हेल्थ केयर सर्वोदय। तो विकसित भारत में का विजन बाय 2047, जिसमें इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है हमारा मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, कि क्या वो अफोर्डेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सफिशिएंट हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स की डेंसिटी है कि नहीं है इंडिया के अंदर। देन डिस्पैरिटी क्रिएट होती है अर्बन एरियाज के अंदर एंड ऑल्सो रूरल एरियाज के अंदर। अर्बन एरियाज जहाँ पे हम देखते हैं कि इनफ मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं होते कि वो केटर कर पाएंगे, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं होते इमरजेंसी केसेस के अंदर, एंड रूरल एरियाज जहाँ पे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं लोगों को इवन टू रीच द हॉस्पिटल। तो 67% ऑफ जो डॉक्टर्स है इन इंडिया दे आर प्रैक्टिसिंग इन दी अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी जो है डॉक्टर्स की रूरल एरियाज के अंदर कम हो जाती है एंड वो कम प्रेफर करते हैं ऐसे रूरल एरियाज में जाना, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है टेली मेडिसिन इनिशिएटिव्स, जिसमें टेली कनेक्शन सर्विसेज यूज करके हम कंसल्टेशन दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो होती है रूरल लोगों को वो कम हो जाती है। जैसे कि ई संजीवनी हेल्थ केयर सर्विसेज भी ओपन किए गए हैं। And affordability of healthcare में role of generic medicines is significant. Secondly, we can say कि India में right now the share of private sector in healthcare is close to 75%. So the share of public sector needs to be increased. या तो it needs to be 50-50% at least. So इसमें again we can talk about then the public sector initiatives, then primary, secondary, tertiary level पे we can divide and talk about. तो ground level workforce जो है, their training, their skilling, upskilling, and their density with respect to the population, that becomes important. Like PM, like ASHA workers and Anganwadi workers, that is significant. Then we can also categorize this in the form of like preventive and मानसी दी, यू आर नॉट ऑडिबल। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेसिबिलिटी, स्किलिंग और ट्रेनिंग करना मेडिकल प्रोफेशनल्स का। इसके साथ साथ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होना, उनकी डेंसिटी कितनी है ऑल ओवर इंडिया। एम आई ऑडिबल? यस करो। ठीक। सो जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का वो भी ग्रो हो रहा है, विच इज कॉजिंग 60% ऑफ द डेथ्स इन इंडिया। एंड ऑल्सो मेडिकल स्टडीज को लेके भी, जिसमें फिलीपींस मॉडल इमर्ज हो रहा है एज एन अफोर्डेबल डेस्टिनेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो कंपटीशन हाई है एंड जो सीट्स हैं वो कम है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसी डेस्टिनेशन, ऐसी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी हो पाए पूरा प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड वहां से स्विच करना। तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें डायग्नोसिस की बात करते हैं हम, कैंसर के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, आई डिसीजेस के बारे में, उनको कैसे अफोर्डेबल भी हम बना पाएंगे ताकि सब लोग जो हैं उसको अवेल कर पाए उन अपॉर्चुनिटीज को। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे दोनों ही सेक्टर्स में, ताकि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हम इंक्रीज कर पाए। तो इंडिया के अंदर $7.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था अक्रॉस 25 प्रोजेक्ट्स, जो कि लार्जेस्ट कमिटमेंट है इन साउथ एशिया। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर के केसेस में इंक्रीज हुआ है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है 49% तक ज्यादा देखी गई है। एंड कोविड-19, जिसमें वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हमने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने साथ में मिलकर कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया था। तो दोनों ही सेक्टर्स का इनोवेशन और अफोर्डेबल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ओजेम्पिक।
तो ओजेम्पिक की बात करते हैं पहले। ओजेम्पिक एक टाइप का ड्रग है, डायबिटीज ड्रग है, जो कि पॉपुलर हुआ था रिगार्डिंग दी वेट लॉस पोटेंशियल। सो इसको लेके इश्यूज क्रिएट होते हैं ओजेम्पिक, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा हुए थे। फेशियल एजिंग, स्किन सैगिंग, ये सब देखा गया था। एंड बेसिकली मिमिक करता है ये एक हार्मोन को, जिसको GLP-1 बोलते हैं हम, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो GLP-1 जो है वो रेगुलेट करता है हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको, एंड स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को इन दी ह्यूमन बॉडी। एंड ऑल्सो स्लो डाउन करता है जो लिवर हमारा ग्लूकोज रिलीज कर रहा होता है। तो उसी के इफेक्ट्स को भी मिमिक कर रहा था ये जो ओजेम्पिक ड्रग आया था। बट कंसर्न्स यहाँ पे होते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट, गॉल ब्लैडर डिजीज जैसे हमने देखा, डैमेज टू आईज जो कि डायबिटीज की वजह से होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो ऐसे डायरिया, नोजिया, इसके अलावा abdominal पेन, इन्फ्लेमेशन पैनक्रियास के अंदर। तो ये सारे कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने देखे रिगार्डिंग दी ओजेम्पिक ड्रग। एक यहाँ पे डेटा भी लिखा हुआ है, NFHS सर्वे रिकॉर्डेड 70% ऑफ अडल्ट इज बीइंग ओबीस इन इंडिया, 70% अडल्ट। एंड ऐसे ड्रग्स का कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं ओवरऑल जो विमेन है एंड ऑल्सो मेल रेशियो है, जो फिजिकल एक्टिवनेस मेंटेन होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोग शॉर्टकट मेथड्स की तरफ भी जाते हैं, जिसमें वेट लॉस मेडिसिन वो ले लेते हैं विदाउट प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम देयर डॉक्टर्स। तो इसलिए भी ऐसे राइट। केसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज chaos इन केन्या ओवर द टैक्स बिल्स। तो जैसे कि क्वेश्चन भी आया था कॉन्गो को लेके, आई थिंक एग्जाम में। तो कीनिया की फर्स्टली लोकेशन हमें पता होना इम्पोर्टेंट है कीनिया की। तो इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इट इज अबव तांजानिया। एंड दो इम्पोर्टेंट लेक्स जो है, लेक विक्टोरिया, इट आल्सो फॉल्स इनटू द टेरिटरी ऑफ कीनिया, एंड लेक तुर्काना। एंड कीनिया से इक्वेटर भी पास करती है। हम्म। और इम्पोर्टेंट पोर्ट जो था मोम्बासा पोर्ट, हमने देखा था उस दिन। हम्म। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इंक्लूडेड नहीं है ना केन्या? नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंडर नहीं है, उसके साउथ में लोकेटेड है। तो जो लैंड बॉर्डर है कीनिया का कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? एक तो तांजानिया होगा, साउथ सुडान हो गया, देन विल बी हैविंग सोमालिया, इथोपिया, एंड एक और कंट्री होनी चाहिए, पांडा। युगांडा। ये लैंड लैंड शेयरिंग है। Then next, how railways will be bringing down the speed of selected trains। तो जो सिक्योरिटी को लेके इंसिडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया जो इंक्रीज हो रहे हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स, उनको कम करने के लिए ये मेजर लिया जा रहा है बाय द इंडियन रेलवेज, जिसमें वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इनकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर से 130 किलोमीटर पर आवर कर दी जाएगी, जिसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा, बट ओवरऑल जो एक्सीडेंट्स हैं, जो जिसका इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है इंडिया के अंदर, उसको हम कम कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन तो ये उठते, क्या हाई स्पीड क्या वो रीजन है बिहाइंड द एक्सीडेंट? हमने देखा था कि ह्यूमन एरर वाज द मेन रीजन। तो जो मेन हम रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं रेलवेज में, तो हाई स्पीड ट्रेन वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये एक तरीके से एक डिलेमा है। हम्म। स्पीड ऑफ ट्रैवल कम हो जाएगी, टाइम ट्रैवल इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। The next is the fertility myth. So We regarding can take session. the next is regarding fertility myth. तो यहाँ पे बात हो रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, एंड ओवरऑल जो टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर देखा जा रहा है कि 2 चिल्ड्रन पर वुमेन हो गए अप टिल 2021। तो टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है, ये आया भी था इन दी यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि ड्रॉप हुआ है ओवरऑल बाय 6%।
तो एज और स्पेसिफिक, TFR होता क्या है वो बता दो आप। तो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली एक विमेन जो है शी विल बी बर्थिंग बाय द ड्यूरिंग एंटायर लाइफ। तो पूरे हम्म लाइफ टाइम के अंदर। हम्म तो इसकी वजह से अगर TFR डिक्लाइन हो रहा है तो इट मींस हमारा रिप्लेसमेंट रेट भी जो है इट विल फॉल बिलो 2। और लॉन्गर टाइम के हिसाब से तो वी कैन से कि इट विल बी अगेन जो द बर्डन ऑफ डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, दैट विल बी इंक्रीजिंग ओल्ड एज के केस। तो हमने देखा था सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी सेम सिनेरियो कैरी आउट हो रहा है, जिसमें जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो अभी की जनरेशन है वो ऑप्ट करिए कि वो उतना ज्यादा फैमिली प्लानिंग ना करें। तो वो रीजन अकेला नहीं होता है, जिसमें हमने देखा जा रहा है कि जो डेवलप्ड एरियाज भी हैं वहां पे भी सेम बेसिकली डिक्रीज देखा जा रहा है। एंड तो इसको हम ऑल्सो कौन से स्टेज में कैटेगराइज कर सकते हैं जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं? जब बर्थ रेट भी डिक्लाइन है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, थर्ड स्टेज होती है, तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाता है। एंड जो रिलीजियस बेसिस से, रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पे हम फर्टिलिटी रेट को देखते हैं, तो उसमें भी जो फर्टिलिटी रेट है फॉर मुस्लिम्स वो डिक्रीज हुआ है। एंड सचर कमिटी रिपोर्ट 2016 में जो की आई थी, जो बात करती है सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मुस्लिम्स के बीच में, एंड फोकस करती है, बताती है कि फोकस करना चाहिए हमको एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर प्रोवाइडेड होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ऑल्सो जेंडर जस्टिस। So instead of focusing upon the numbers, we should be focusing upon the quality of human resource. Yes. Then next we're talking about the Andaman and Nicobar project, that is a 72,000 crore project, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्ट्रैटेजिक है इंडिया के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी, एंड ऑल्सो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक सेक्टर्स को लेके भी। बट यहाँ पे कुछ कंसर्न्स उठते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, जिसमें शोम्पेन्स हो जाते हैं, इसके अलावा अंडमान में भी ट्राइब्स है जारवा, जो कि Activities. इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिजिनस पीपल एंड ऑल्सो इंडिजिनस स्पीशीज का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना रहे हैं, देन ऑल्सो सोलर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमी है अंडमान और निकोबार की, वो मेजरली डीजल रन है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोलर और हाइड्रो पावर जनरेशन को वहां पे इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेके इंपॉर्टेंट हो जाता है, मलाका स्टेट सर्विलेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ऑल्सो जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंडियन ओशन के ऊपर, उसमें बेसिकली हेल्प करता है इंडिया को अपना स्टैंड मेंटेन करने के लिए। ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूट है, तो एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, आसियान रीजन के अंदर। तो जो सी बॉन्ड ट्रेड है, एनर्जी इंटरेस्ट है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, उसके लिए इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ग्रेट Two important laws. टू इम्पोर्टेंट लॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एक तो पैसा एक्ट के जो हमने कल डिस्कस किए थे, तो मैं बस एक बार इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मेंशन कर रही हूँ। पैसा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप, दिस वाज वन कीवर्ड। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है अलोंग विद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड इकोसेंट्रिसिज्म पे हमें फोकस करना चाहिए। सो ये भी कुछ एलिमेंट्स है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एंड दो फैक्ट जो हमने कल कवर किए थे, दैट वाज द गलथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो मेगापोड क्या है? मेगापोड इज अ बर्ड स्पीशीज, IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, एंड इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड यहाँ पे ये भी कंसर्न उठा था कि जो वहाँ की ट्राइबल काउंसिल है उसको कंसल्ट नहीं किया गया।
तो उसको भी कंसल्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे से। तो सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगेन अगर विल बी जंपिंग ऑल दीज इम्पोर्टेंट स्टेप्स, चाहे EIA हो, उसके रिगार्डिंग भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं बाय नीति आयोग, तो वेदर इट वुड बी रियली कॉल्ड डेवलपमेंट और नॉट इज द क्वेश्चन। अन इंटरनेशनल शिपमेंट प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, तो जैसे कि सिंगापुर मॉडल है, उसी मॉडल पे भी अंडमान एंड निकोबार मॉडल हम आगे बढ़ा पाएंगे। अनइम्पोर्टेंट भी हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऐड करते हैं, जो कि 30% है ऑफ इंडिया टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मरीन लाइफ वहां पे इम्पोर्टेंट है। ब्लू Natural- इकोनॉमी बोल सकते हैं, हाँ। Then next we're talking about nearly 50% of Indians are less active than the recommended level by WHO, जिसमें ज्यादा नंबर इंडियन विमेन का है एज कम्पेयर टू मेन। क्योंकि इंडियन विमेन में हम देखते हैं कि बिलीव किया जाता है कि जो हाउस होल्ड चोर्स वो कर रही हैं इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बट ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर आपको डेडिकेटेड एक्सरसाइज करना जरूरी है। एंड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी हम किसको बोलते हैं? तो अगर एक पर्सन है वो 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी, 75 मिनट्स ऑफ विग्रस इंटेंसिटी एक्टिविटी नहीं कर रहा है पर वीक, तो उसको बोला जाता है कि इट इज ही और शी इज हैविंग इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू WHO, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस हैं जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स, हार्ट स्ट्रोक्स, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया, कैंसर के केसेस ये और भी ज्यादा इंक्रीज होते हैं। एंड ऑल्सो विद हीट लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिजिकल एक्टिवनेस भी हम मेंटेन करके रखें। तो इंडियन एडल्ट्स के अंदर जो अनएक्टिवनेस है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 23% से 49%। तो 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी अनफिट बाय 2030, जिसकी वजह से डिजीजेस जो हैं उसका लेवल भी इंक्रीज होएगा। तो नॉन कम्युनिकेबल एंड डिजीजेस का बर्डन और ज्यादा इंक्रीज होएगा फिजिकल इनएक्टिवनेस की वजह से। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका आएगा हमारे क्वालिटी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर, लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि अर्बन स्पेसेस में हम स्पेसिफिकली स्पेस क्रिएट की जाए जब हम अर्बन प्लानिंग करते हैं, ताकि फिजिकल एक्टिवनेस जो है लोगों की वो इंक्रीज हो पाए। तो कंजेस्टेड एंड एरिया में वहाँ पे जरूरी है कि एक पार्क तो होना ही चाहिए, तो ओपन स्पेसेस होनी चाहिए। so it is related to your lifestyle, the way of lifestyle that you follow, और अगर physical activity increase होगी तो in a way it would be also helping in reshaping the eating habits also, तो वो internally subconsciously हो जाता है, then you will not feel like having more of processed food या junk food. Then next we're talking about India needs the anchor of a national security strategy. सो यहाँ पे कंसर्न्स की बात हो रही है, जो यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप है उसको हम आगे कैसे मेंटेन करेंगे स्ट्रैटेजिकली, एंड ऑल्सो जो कंपटीशन है विद चाइना डिफरेंट टर्म्स में, जियोपॉलिटिकल टर्म्स में भी एंड ट्रेड के टर्म्स में भी, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है बेसिकली एंड जो पावर स्टेटस है साउथ एशिया के अंदर, उसमें इंडिया अपना स्टैंड कैसे मेंटेन करेगा इन द नियर फ्यूचर, जिसमें मिलिट्री इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि की डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग चाइना ऑल्सो। इसके साथ साथ इसमें बोल सकते इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. Many powerful states publish some form of national security strategy. और इसके होने से क्या फायदा होगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन दिखेगा. दूसरा कि कोहेरेंट फ्रेमवर्क, मतलब कि सबको ही, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री होंगे, सबको एक साथ काम कर सकता है टू अचीव दैट गोल. एब्सेंस होने के कारण क्या होता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन गैप. थर्ड वुड बी, उसे पता लग सकता है कि फ्रेंड कौन है, फो कौन है, किसके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, किसके साथ नहीं है. उसके बाद फिर
बोल सकते हैं मैकेनिज्म होगा एक तरह टू सिंक्रोनाइज एफर्ट, डिस्कस इंडियन एयरफोर्स नेवी, आप कैपिटल एक्विजिशन ऑफ द डिफरेंट एयरक्राफ्ट कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, वो डिसाइड कर सकते हैं ओवरऑल। और चाइनीज थ्रेट उसमें बात हो रहा है कि इश्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि सिटीजन ऑफ इंडिया नीड टू नो कि गवर्नमेंट हाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी, कौन कौन से चौक पॉइंट है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, किसके साथ ऑटोनॉमी है, किसके साथ पार्टनरशिप है। तो ओवरऑल ये सब कब दिखेगा, जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आप अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। Hmm. Then next is regarding a scheme in Haryana. So मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसके अंदर अर्बन स्पेसेस को लेके फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑफ 1.5 लाख रुपीस। लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है लो इंटरेस्ट रेट पे। होम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट बैंक से। और बस यहाँ पे फिगर्स इंपॉर्टेंट है एचसीएस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 1.5 lakhs and loan up to rupees 6 lakhs at low interest rate. The next is regarding the success of India China's sample which is returned from lunar mission Chang'e 6, जो कि वापस लेके आया है सैंपल्स फ्रॉम चाइना, सैंपल्स फ्रॉम मून, जिसमें 2 kg ऑफ ल्यूनर सॉइल जो है वो वापस लेके आया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको स्टडी किया जाएगा मून की हिस्ट्री को लेके, कैसे क्रेटर्स फॉर्म हुए थे, क्या कॉम्पोजिशन है, आगे ये जो ल्यूनर सॉइल है इसको हम आगे के मिशंस में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जिसमें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है चंद्रयान 3, जो कि लैंड हुआ था ऑन दी साउदर्न पोल ऑफ मून। तो 600 किलोमीटर्स फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ मून वहां पे वो लैंड हुआ था। करेंटली डेवलपमेंट फेज में है चंद्रयान 4 मिशन। तो ल्यूनर सॉइल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो सैंपल्स हम वापस लेके आते हैं, इससे हम टाइम फ्रेम जो है ल्यूनर क्रेटरिंग का वो डिफाइन कर सकते हैं, कोलिजन कैसे हुआ था वो डिफाइन कर सकते हैं। देन जो क्रस्ट है ल्यूनर सरफेस पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ल्यूनर सॉइल को हम ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 3D प्रिंटिंग हम कर सकते हैं जब ल्यूनर रिसर्च बेसिस हम ओपन करेंगे। तो इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए एंड रशिया, इन्होंने ल्यूनर मिशंस लॉन्च किए थे। एंड अभी तक की बात करते हैं तो मोर देन 100 मून मिशंस हैव बीन लॉन्च्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनीज। And also we can say कि space tourism को भी boost मिल सकता है. We are having successful missions and safe returns. तो जहां से तो ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उसको हम बोल रहे हैं साउथ पोल एटिकन बेसिन, SPA बेसिन। near side of the moon लिखा है. All these samples came from the near side of the moon. तो I think South Pole को हम far side of the moon बोलते हैं because it is difficult to reach and it is darker over there. तो near side of the moon देखना पड़ेगा exactly कौन सा part of the moon की बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो साउदर्न साइड जो है वहां पे हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है वो ज्यादा थिक है। तो वहां पे लावा फॉर्मेशन पहले माना जाता है कि हुआ था, इस वजह से उसकी क्रस्ट वहां पे थिक मानी जाती है। तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अ पैसिफिक आइलैंड ऑफ साइपिन आइलैंड। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है एंड कैपिटल है नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड का, जो कि एक यूएस कॉमनवेल्थ है इन दी लोकेटेड इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो पहले कॉलोनी था ये स्पेन का, देन जर्मनी, देन जापान, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने कंट्रोल कर लिया ओवर द आइलैंड इन दी वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पे यूएस से सिटीजन्स एंड ऑल्सो चाइनीज सिटीजन्स सिर्फ जा सकते हैं विदाउट वीजा। इसमें क्वेश्चन उठता है कि जूलियन असांज है कौन। ही इज अ फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। विकीलीक्स या विकीपीडिया है, जैसे कि आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिलता है रिगार्डिंग एवरीथिंग विकीपीडिया में,
वैसे ही विकीलीक्स, मतलब कि इम्पोर्टेंट लीक्स हुआ है वर्ल्ड वाइड, मोस्टली यूएस गवर्नमेंट का लीक्स हुआ है, उस पर ऑनलाइन सिटीजन जाके देख सकते हैं। तो कभी आप ट्विटर पे देखना तो आपको एक लीक्स का पूरा एक ऑडियो वीडियो फाइल सब ऑनलाइन अवेलेबल है। यूएन सिटीजन 2003 में इराक के अंदर में क्या क्या किए हैं, कितना ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हुआ है, उसका है वीडियो है, कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर को यूज़ किया गया था अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन, बोला गया था कि बर्न देम ऑल टाइप, कोट एंड कोट। तो हर एक चीज़ को लीक किया गया था इसमें। फिर बोला गया था कि कैसे कोट एंड कोट हमारे कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने न्यूक्लियर जो एक तरह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इंडिया का था उसको कैसे हैम्पर किया था। चाइनीज़ कैसे इंडिया में ओवरऑल कैसे बढ़ाए जा रहे थे इन्वेस्टमेंट, और कोई कोई पॉलिटिशियन लोग उनके हाथ अंदर में थे, तो सब ऑनलाइन अवेलेबल। तो विकीलीक्स से फाउंडर थे, तो उन्होंने एक सबसे मेन चीज़ 2013 में बताया था कि कैसे यूएस गवर्नमेंट जो सीआईए है वो आईफोन और बाकी जब के अंदर में फेस टाइम से लेकर के जीमेल फेसबुक उसको मॉनिटर करते हैं, उसका माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, और जो कॉल मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में ही फिर जूलियन असांज को ओवरऑल बोला गया था कि ये स्पाई है, ये एक तरह से जो यूएस का सिक्योरिटी है उसको हैम्पर कर रहा है, तो इसको जेल भेजा जाएगा। तो यही पूरा केस है विकीलीक्स और यूएस का। Then next is regarding the post of deputy speaker. So पोस्ट deputy, ऑफ डेप्यूटी स्पीकर बोले तो आर्टिकल 95, तो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर, तो जब तक स्पीकर का पोस्ट वेकेंट रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, कुछ काम से आते हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स ऑल द रोल दैट हैज़ बीन गिवन टू द स्पीकर। तो जनरल पावर सब रहता है उनके पास, रहता है कि आप डेकोरम मेंटेन करें, बिल मनी बिल है कि बिल की है नहीं उसको करे, सेशन में जाकर के वो इन्फोर्स करे कोड एथिक स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करे, वो सब चीज़। और दूसरा चीज़, स्पीकर रिजाइन्स इन ऑनली रीडिंग एंड राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर। तो कन्वेंशन रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर में मोस्टली हमेशा ऑपोजिशन पार्टी के हुए, तो लेकिन फॉलो भी नहीं होता है बहुत बार। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, तो इट इज नॉट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वहां पे बस ये मेंशन है एज सुन एज पॉसिबल person should be appointed to the post of deputy speaker, and deputy speaker is a member of parliament. हाँ, and removal के लिए deputy We speaker. require effective majority required है, मतलब दोनों के the लिए, रिमूवल members के हाँ लिए दोनों के लिए। हाँ इफेक्टिव। तो लिखा हुआ है कि अभी ऊपर करो, फर्स्ट स्पीकर जीबी मावलंकर 1956 में डेथ हो गया था उनका, तो डेप्यूटी स्पीकर ने संभाला टेनर को। तो बहुत बार ऐसा केस, 2-3 बार केसेस हुआ है अभी तक में। तो ऑपोजिशन में कन्वेंशन नहीं है, बीच बीच में टूटा है कन्वेंशन, लेकिन ओवरऑल ऑपोजिशन पार्टी को भी डेप्यूटी स्पीकर का रोल मिला था। Then next we're talking about why India needs to build disaster resilience in its critical infrastructure. तो coalition for disaster resilient infrastructure जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनिशिएटिव्स कैरी आउट करे इंडिया के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उड़ीसा के अंदर स्पेसिफिकली, वहां पे उसको स्टडी किया है उन्होंने, एंड कैसे जो मल्टी हजार डिजास्टर्स आते हैं वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हैम्पर करते हैं, जिसमें टेली कम्युनिकेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये डिसरप्ट हो जाते हैं डिजास्टर्स की वजह से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट है उसको कैसे हम कम करेंगे, एंड ऑल्सो ये जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम कैसे वर्किंग रख पाएंगे डिजास्टर्स के टाइम पे। जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स जो कि डिजास्टर प्रोन एरियाज के अंदर लोकेटेड है, उनके पास भी बैकअप पावर सप्लाईज इक्विप्ड होने चाहिए, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, इनके पास स्टेप्स होने चाहिए ताकि जो वाटर लॉगिंग हो जाती है उसको क्विकली हम ड्रेन आउट कर पाए। टेलीकम्युनिकेशंस लाइन जो है वो वर्किंग रहे इवन इन द टाइम्स ऑफ डिजास्टर। सो लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी एबनॉर्मली हाई हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ओडिशा जैसे स्टेट्स जहाँ पे जो कि डिजास्टर प्रोन है, जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स के ऊपर हम प्लानिंग करें। तो सबसे पहले मैपिंग हम करते हैं डिजास्टर प्रोन रीजन्स की, इसके बाद वहां पे एनडीएमए का रोल होता है एंड स्टेट लेवल पे भी रोल होता है, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, कैरी आउट करते हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें मल्टी लेवल शेल्टर्स हम बनाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं ताकि प्रिकॉशन हम पहले ही ले पाए। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए डिजास्टर रेजिलियंस बिल्डिंग्स जो हम बनाने वाले हैं, एंड क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। The next is regarding analyzing Maharashtra's water crisis. तो So यहाँ पे I was mentioning कि Sendai framework भी important हो जाता है for disaster risk reduction. So there should be synergy between these three important elements: SDGs, Paris Climate Agreement, and Sendai framework. And role of CDRI भी important है. So this is one of, we can say it is an initiative by India, CDRI. Okay. The next is analyzing Maharashtra's water crisis. सो वाटर स्ट्रेस लेवल जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लेवल पे एक्सपीरियंस किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें मेजर रोल प्ले किया जा रहा है बाय द नेचुरल मॉनसून साइकिल, जिसकी वजह से एक रेन शैडो एरिया क्रिएट हो जाता है, एंड ऑल्सो शुगर केन का प्रोडक्शन इवन इन दी लेस रेनफॉल रीजन्स, तो वो और भी ज्यादा बर्डन जो है उसको इंक्रीज कर रहा है। रेन शैडो रीजन्स जिसमें वेस्टर्न घाट्स साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, एंड जो वेस्टर्न साइड है वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है, अबाउट 2000 से लेके 4000 मिलीमीटर्स तक। बट जो हमारी ईस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट की, वहां पे एक रेन शैडो एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसमें मराठवाड़ा जो है वो रेन शैडो रीजन के अंदर ही लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। तो इस रेन शैडो रीजन के अंदर ऐसी क्रॉप्स को उगाना हमें चाहिए जो कि लेस वाटर इंटेंसिव हो, क्योंकि रेन फॉल जो है ऑलरेडी कम आ रही है एंड इरिगेशन पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ड्रॉट लाइक कंडीशंस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ देखी जा रही है नॉर्थ कर्नाटका के रीजन में एंड मराठवाड़ा रीजन के अंदर, जो कि सेकेंड ड्राइस्ट रीजन है इन इंडिया आफ्टर राजस्थान। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हम कितना कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो मराठवाड़ा रीजन के अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो वाटर क्राइसिस एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसका मेजर कंट्रीब्यूटर शुगर केन कल्टीवेशन देखा जा रहा है, कि वाटर स्ट्रेस रीजन होने के बाद भी शुगर केन कल्टीवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। शुगर केन जो कि काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, एंड हर रोज इसको इरिगेशन चाहिए होती है। अगर पल्सेस और मिलेट से हम इसको कंपेयर करते हैं, जिसमें 4 से 5 इरिगेशन रिक्वायर्ड होती हैं, शुगर केन में इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। सो ये जो क्रॉप है, ये मराठवाड़ा रीजन के अंदर ही अगर बात करते हैं तो 4% ऑफ जो टोटल क्रॉप एरिया है उसमें शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, जिसमें इरिगेशन वाटर काफी ज्यादा कंज्यूम करता है। ये जो वाटर स्ट्रेस है इस पूरे रीजन में और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। तो वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी है। एंड मॉनसून के आने के बाद भी इस रीजन में एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, जो टोपोग्राफी है मराठवाड़ा के अंदर, कि यहाँ पे जो सॉइल का टाइप है वो रेगल टाइप सॉइल है, ब्लैक सॉइल, क्लेई सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि फर्टाइल होता है एंड मॉइस्चर को अच्छे से रिटेन करता है, बट इसका इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत कम होता है। मतलब जब बारिश आती है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत ज्यादा कम होता है, जबकि जो वाटर है वो लॉक्ड रहता है एंड रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ को इंक्रीज कर देता है, बट जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। तो इस वजह से भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो बारिश मिल भी रही है उससे, उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हो पाता हमारा। So the process which is responsible for dry conditions on the leeward side in Maharashtra की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र बोलेंगे, that is called adiabatic process। तो जो dry winds हैं
आफ्टर द रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड वो विंड्स ड्राई हो जाती हैं, लीवर्ड साइड पे जब वो पहुंचती हैं तो थ्रू द एडियाबैटिक प्रोसेस दे गेट वार्म्ड अप व्हेन दे आर मूविंग डाउनवर्ड्स दी स्लोप इन द लीवर्ड साइड, उसकी वजह से ड्राई कंडीशंस क्रिएट होती हैं एंड दिस इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, और जो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है इन महाराष्ट्र दे आर कॉल्ड सह्याद्रीज। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए हो जाता है कि शुगर केन की जगह हाई वैल्यू एंड लो वाटर यूजिंग क्रॉप्स की तरफ हम शिफ्ट लेके आए, एंड जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो हमें ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए बिहार वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल के अंदर एंड उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन और प्रमोट होना चाहिए, जैसे कि वी सी कि महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, इंस्टेड ऑफ अगेन जो क्रॉप रोटेशन है या फिर वही क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स को ग्रो करना, एंड वी गेट ब्लैक सॉइल इन दिस रीजन व्हिच इज मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। Then next we are talking about, will the Agnipath scheme be revamped? तो अग्निपथ स्कीम जिसमें रिक्रूटमेंट करते हैं हम सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, 3 सर्विसेज के अंदर। रिक्रूटमेंट की एज जो वेरी करती है 17 से लेके 21 ईयर्स तक। इसके अलावा 25% जो अग्निवीर हैं उनमें टोटल इसमें अग्निवीर इसमें वी कैन से कि अग्निवीर अग्निपथ स्कीम हो गया, अग्निवीर उनको कहा जाता है जो लोग जाते हैं। हाँ, तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता था हमेशा। तो अग्निपथ स्कीम के अंदर में क्या है, 40,000 आर्मी, 3,000 एयरफोर्स के अंदर में, क्लास 12 सर्टिफिकेट में अगर आपके पास है, बैचलर डिग्री है तो स्किल सर्टिफिकेट है, आप जा सकते हैं। और 3 साल में आपको 4 साल में आपको करना पड़ेगा काम, और प्लस 25% 40,000 में सिर्फ और सिर्फ 10,000 को परमानेंट बेसिस पे इंक्लूड किया जाएगा। बाकी सबको पैसा दे करके आपको कंपनसेट करके आपको बोला है कि आप अवेलेबल नहीं, तो लमसम अमाउंट दिया जाएगा एक ही बार में, पेंशन नहीं मिलेगा। व्हाट आर द कंसर्न? पहला कंसर्न है कि शॉर्टेज है, इसके कारण जरूरी है। दूसरा है कि ऑफिसर लैंग्वेज शॉर्टेज है। दूसरा, कोविड के समय में नहीं हो पाया। 60,000 सोल्जर रिटायर फ्रॉम द आर्मी एवरी ईयर वाइल 40,000 आर रिक्रूटेड एवरी ईयर। तो ये मिसमैच है एक तरह से। और लो कन्वर्जन रेट ऑफ 25%, 40,000 में भी वो 10,000 ही जो लॉन्ग टर्म में रहने वाला है, तो भी एक कारण है। तो इसमें बोला है कि रिकमेंडेशन फॉर इनहेंस्ड इनटेक नंबर्स, परमानेंट रिक्वायरमेंट फॉर 25% टू एटलीस्ट 50%, ये बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें पेंशन का इशू हो रहा है ना, तो लमसम अमाउंट अगर 20 लाख रुपीज दे रहे हैं डायरेक्टली, अगर उसके जगह पर हम लोग अगर पेंशन दे दें 20 लाख को, आप एक तरह से उसको इन्वेस्ट कर दें इन म्यूचुअल फंड, मतलब फ्रॉम बाय द आर्मी, नेवी, बाकी सब, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस महीना का 20 या 25,000, तो साल भर में कितना हो जाएगा, 2.5। और वही चीज़ अगर 10 साल तक देंगे 25, तो 10-15 साल तक अगर लगातार पेंशन देंगे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर easier, that will be more affordable, और that will be more उसको बेच सकते हो, इस स्कीम को फिर बेच सकते हो लोगों के बीच में, ऐसे गवर्नमेंट के पता ऊपर नहीं चलता। फिजिकल बर्डन है उसको मैनेज किया जा सकता है। हम्म तो रादर देन इंक्रीजिंग द पेंशन कॉस्ट, उसको एक एक अमाउंट दे सकते हैं। बस यही है इसमें ओवरऑल। एक और चैलेंज है कि अगर वो कर लेंगे अग्नि 25, 30, 26, 32, नहीं 25, 26 के आसपास हो जाएंगे, फिर वो बीटेक का डिग्री ले सकते हैं कि नहीं, कोई नौकरी उसको मिलेगा कि नहीं, तो एक चैलेंज हो जाते हैं कि अपने प्राइम एज के समय में वो अग्निपथ में चलेगा, तो एक चैलेंज। और फिर अग्निपथ के बाद जो स्किल मिलेगा, अगर वो स्किल यूज़ नहीं किए, तो हो सकता है कोट एंड कोट की उनको कहीं और से मिले दूसरे कंट्री में, तो हो सकता है वो माइग्रेट कर जाए रशिया टाइप में, कि वॉर में पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, या फिर उनको कोई और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं उनको प्रोपागेंडा के थ्रू यूज़ करके, ब्रेन वॉश करके उनको भी लिया जा सकता है। तो उनके पास स्किल आ जाएगा, वेपन स्किल आ जाएगा, मिलिट्री वार में जानना चाहे वो जान लेंगे, तो ये भी एक इशू है ना।
तो आगे प्लस नहीं एम्प्लॉयमेंट इशू है। कर और पाएंगे, क्या हुआ? फिर आगे भी जाके दूसरे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कनोटेशन में ना, कि उनको पता रहेगा वेपन कैसे चलाते हैं, कौन कौन से आर्मी में कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ कहाँ पे उनका बेसेस है। तो हो सकता है ना कि एनिमी कंट्री या बाकी सब कुछ प्रोपागेंडा के थ्रू या कुछ उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सब भी। एंड एक और रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो एंट्री लेवल एज है दैट इज 17 ईयर्स, उसको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि जब आर्मी के अंदर आ भी रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो इनफ टेक्निकली क्वालिफाइड हो। The next is regarding water crisis and how it can hit India's credit health. So water intensive sectors जिसमें coal power production centers आ गया, steel makers हो गए, ये vulnerable हैं, जो कि हम already discuss कर चुके हैं आज regarding the water stress. तो water stress जैसे जैसे increase हो रहा है, हाइड्रो पावर जनरेशन भी, हाइड्रो पावर जनरेशन जो हमारा है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जो कि हम देखते हैं कि रिजर्वोयर्स का लेवल है 17% पे, 20% पे वर्क कर रहे हैं। तो हाइड्रो पावर जनरेशन कम होगा, जिसकी वजह से कोल पावर सेक्टर जो है वहां पे हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पावर डिमांड है हमारी वो इंक्रीज हो रही है, बट ऐसे सेक्टर्स में पावर प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है हमारी। तो इकोनॉमिक लॉसेस इसकी वजह से, डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। The next is brains that don't see in gray scales first, over rely on the इसको शॉर्ट में बताया। तो इसमें बात हो रही है प्रोजेक्ट प्रकाश के बारे में मेजरली, जो कि रिहैबिलिटेट करते हैं और ट्रीटमेंट दिलवाते हैं टू दी ब्लाइंड चिल्ड्रन इन इंडिया। सो इनके बारे में यहाँ पे रिसर्च हुई है कि ह्यूमंस कलर विजन को लेके, कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको कलर, जो ऑब्जेक्ट है उनके कलर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। डिफरेंट डिफरेंट रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे आईज के अंदर, तो विजुअल इम्पेयरमेंट इनकी वजह से होता है, जिसकी वजह से ना ही तो इनको कलर दिखता है एंड ना ही ग्रे स्केल इमेजेस दिखती हैं। तो उसी विजुअल बेसिकली ग्रे स्केल इमेजेस को मिमिक करने का ऑर्डर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ग्रे ग्रे कलर कलर एंड डिफरेंट ऑर्डर्स है जिसमें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे वो पैटर्न्स में। तो प्रोजेक्ट प्रकाश इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जिसमें जो बच्चे कलर नहीं देख पाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल एनवायरनमेंट पे उनको दिखाया गया था ताकि वो उसको एक्सपीरियंस कर पाए। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से किया गया है यहाँ पे, जो कि ऐसे टाइप का न्यूरल नेटवर्क है जहाँ पे फिल्टर किया जाता है एंड ऑप्टिमाइज किया जाता है डेटा को, एंड बेसिकली डिफरेंट लेवल्स पे, जो न्यूरल के डिफरेंट लेवल्स हैं उस पे हम डिफरेंट ग्रेडियंट्स को लेके आ सकते हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यहाँ पे यूज किया गया है, ताकि जिन बच्चों को कलर भी नहीं दिखता है एंड ग्रे स्केल भी नहीं दिखता है, उनको कैसे एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। देन डेथ बाय ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कैरी आउट किया जाता है, जिसमें आयरन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ आरबीसीज, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन और 4 हेम ग्रुप से बना होता है एंड प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पोटेशियम साइनाइड जो है वो जो ब्लड की जो हीमोग्लोबिन की हमारे सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद द हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। तो एक प्रोटीन है वो, सही इम्पोर्टेंट है कि इट इज लीथल टू ह्यूमन हेल्थ, पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग। देन डोडल, सो जीआई टैग्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डोडल है क्या यहाँ पे? इट इज अ स्वीट। सो मतलब इसका ओरिजिन जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंट्रीज इन साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया। तो ये इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, बट इट इज नाउ फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। GI टैग की बात हो रही है। फूड एज अ प्रोडक्ट इज सर्व्ड वेल बाय थिंग्स लाइक GI टैग्स, बट फूड एज अ कल्चर नीड्स अ वाइडर लेंस।
So food is not just even only related to food security or human health. Important element of cultural aspect भी है. Diversity of food India में हम बात करते हैं in different states. So it is a part of cultural identity, and even this is it forms an important part of even our celebrations, our festivals. So that remains incomplete without our food. Then next we are Next. talking about mangoes. So mango कल्प वृक्ष के नाम से भी इसको रेफर किया जाता है. तो मैंगो अगर बोला जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सबको एक्सपोर्ट भी किया जाता है इन द मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज. किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता था. हैज़ बीन कल्टिवेटेड इंडिया फॉर लास्ट 4000 ईयर्स. 1000 से ज़्यादा वैराइटीज़ है. लेकिन देखा जाता है 22 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन है. तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंडिया में प्रोड्यूस होता है मैंगो. और आप एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 93,000 टन एक्सपोर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि बाकी भी कंजम्पशन होता है. नॉर्थ साउथ डिवाइड में भी है मैंगो. कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं कम है नॉर्थ साउथ में. और इंडिया के अंदर मेजर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका टॉप 3 में. तो since it is नॉन ड्यूरेबल, तो ट्रेड में ये चैलेंजेस होते हैं कि इजीली पेरिश हो जाता है. तो क्वालिटी कंसर्न्स जो है, जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, उसको एक तरीके से बेसिस बना के दी कंट्री, स्पेसिफिकली यूएसए में ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि दे रिजेक्ट दी शिपमेंट्स फ्रॉम इंडिया, स्पेसिफिकली मैंगोज या बाकी फ्रूट्स की. तो एक तरीके से दिस लीड्स टू इंक्रीज इन फूड वेस्टेज, या जो हॉर्टिकल्चर को हम एनकरेज करने की बात कर रहे हैं. तो इसमें what role can the government या public sector play in terms of transportation? तो उसमें climate resiliency का एक important element आ जाता है, या फिर air conditioning services क्या हम और बेटर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करके प्रोवाइड कर सकते हैं. तो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज होना इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो जो कॉस्टलीस्ट मैंगो है, इट इज आई थिंक 2.5 lakhs पर kg. का नेम मियाजाकी मैंगो, जापान से ओरिजिनेट करता है एंड वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट मैंगो है. एंड बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में भी उगाया जा रहा है इसको.